Hello everyone. The topic of this session is factorization by splitting the middle term. Okay, you have learned this topic in class 7 as well as in class 8. So we'll discuss it more elaborately. Now the first question is this. First of all, this method is used to factorize trinomials. Trinomials. That is, there are three terms, and basically the quadratic polynomials. Quadratic polynomials. And standard form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. Okay, but we should remember that our polynomial should be written in the standard form. That is, the power of variable should be in the descending order or in the ascending order. This is the first condition. Okay, the power of variable should be in the descending order or in the ascending order. Now first question is x square plus 11x plus 30. It is written in the standard form. Now the coefficient of first term is called 1, coefficient of second term is b, and coefficient of third term is 30. Okay. Now first of all we will do a into c. We will get 1 into 30 is equal to 30. Okay, and notice the sign of this product. Now write all factors of 30 which you have learned from the 6th class I think. 31 से डिवाइड होता है कितने टाइम्स? 30 टाइम्स. 2 से डिवाइड होता है कितने टाइम्स? 15 टाइम्स. 3 से होता है 10 टाइम्स. 4 से नहीं होता, 5 से होता है 6 टाइम्स. Only 4 pairs are possible. Now since the sign of product is positive, hence हमें एक ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है कि जिसका सम is equal to b. Sum should be equal to b because the sign of product is plus. Hence the sum of these two should be equal to b, and here b is equal to 11. तो सम 11 आना चाहिए, और यहाँ पर 5 plus 6 का सम 11 है. So we'll write like that. Is equal to x square प्लस की जगह प्लस लिखा, ब्रैकेट 11 की जगह लिखेंगे हम 6 plus 5. बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखना है, प्लस 30. ठीक है, बड़े को इज्जत देनी है हमेशा, तो पहले लिखा जाएगा ऑलवेज. एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, 6 into x 6x प्लस 5x प्लस 30. ओके, नाउ ये दो के पेयर बनते हैं. अब इन दोनों टर्म में x कॉमन है, देन वी विल हैव x प्लस 6. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन? अगर आपने x कॉमन लिया है, जिसमें ये दोनों टर्म जो है x से डिवाइड होंगी. दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉमन. अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. और यहाँ पर साइन प्लस है तो प्लस लिखा जाता है, माइनस है तो माइनस लिखा जाता है. और इन दोनों टर्म में 5 कॉमन है, सो प्लस 5 कॉमन आया, तो हम लिखेंगे 5x अपॉन 5 प्लस 30 अपॉन 5. ओके, तो x यहाँ पावर कट जाएगी, x बचेगा. x प्लस 6 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6. इन दोनों टर्म में x प्लस 6 कॉमन है, तो x प्लस 6 दोनों टर्म में कॉमन आ गया. तो क्या बचेगा? क्या बचा? x प्लस 5. ओके, ऐसे देखना होगा आपको. तो दिस इज आवर आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is px is equal to 3 plus 5x minus 2x square. Okay, the power of variable are in ascending order, so it is written in the standard form. So the first term is 3, coefficient of second term is 5, and coefficient of third term is minus 2. Now do a into c. So 3 into minus 2 is equal to minus 6. Now write all factors of 6. 1 into 6 and 2 into 3. No other pair are possible. Now since the sign of a into c is negative, so difference should be equal to b. Difference of these two numbers
should be equal to b, and here b is 5. So 1 and 6 का difference 5 होता है. Okay, we will write like this: 3 plus 5 की जगह में लिखना है 6 minus 1, बड़ा नंबर पहले लिखेंगे हमेशा, is equal to 3 plus 6x minus x minus 2x square. अब ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म, इन दोनों में 3 कॉमन है, ये 3 से डिवाइड होगा तो 1 मिलेगा, और ये 3 से डिवाइड होगा तो 2x. नाउ हियर माइनस, माइनस का माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस. अब इन दोनों टर्म में माइनस एक्स कॉमन है, तो ये दोनों टर्म माइनस एक्स से डिवाइड होगी, यानी माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स माइनस 2x अपॉन माइनस एक्स. तो वी विल हैव 3 इंटू 1 प्लस 2x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स एक्स कटा तो 1 आया, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, सॉरी 2x स्क्वायर था तो मिला 2x, दोनों में 1 प्लस 2x कॉमन है, और यहां से हमें मिल रहा है 3 माइनस एक्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 7y स्क्वायर. इट इज ए पॉलिनोमियल इन x एंड y. ओके, पॉलिनोमियल x एंड y, और यहाँ पे पावर ऑफ x2 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 0 है, तो पावर आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो अगर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन देखें वो आपका 3 है, सेकंड नंबर का ऑप्शन वो हमारा b है, 4 है सॉरी, और थर्ड नंबर का ऑप्शन यानी वो हमारा माइनस 7 है. ए बी सी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, सी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, एंड पावर्स ऑफ वेरिएबल शुड बी इन द डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर. नाउ डू ए टू सी, यानी 3 इंटू माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 21. ओके, नाउ साइन इज नेगेटिव, so we have to look for the difference. Difference should be equal to b. b is 4. Now write all factors of 21. 21 होता है 1 into 21, 2 से नहीं होता डिवाइड, 3 से होता है. 3 into 7, 4 से डिवाइड नहीं होता, आई थिंक 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 पेयर पॉसिबल है. तो factors of 21 are 1, 3, 7 and 21, and we have 2 pairs, and we want such pair whose difference is 4. So this is required pair. Okay, now we will write like this: equal to 3x square plus 4. 4 की जगह लिखना है मुझे 7 minus 3, बड़ा नंबर पहले लिखेंगे. ओके, xy minus 7y square is equal to 3x square plus 7xy, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 into xy, 3xy minus 7y square. ओके, इज इक्वल टू एक पेयर ये हमारा और दूसरा पेयर ये. इस फर्स्ट पेयर में एक जो x कॉमन है दोनों में, और दूसरा कॉमन नहीं दिख रहा है मुझे, तो आपने x कॉमन लिया, इसको x से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3x प्लस इस टर्म को x से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 7y. नाउ यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस कॉमन लिया, और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, y, तो माइनस y कॉमन लिया हमने. ओके, तो माइनस 3xy अपॉन माइनस y माइनस 7y स्क्वायर अपॉन माइनस y, तो इज इक्वल टू x इंटू 3x प्लस 7y माइनस y माइनस माइनस प्लस y से y कैंसिल हो गया, 3x माइनस माइनस प्लस y से y कैंसिल हो गया प्लस दिस. सो 3x प्लस y कॉमन है दोनों में, 3x प्लस 7y, यहां से क्या मिलेगा x और यहां से मिलेगा y, एंड दिस इज आवर आंसर. तो केवल एक ही प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है, पावर्स ऑफ वेरिएबल शुड बी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज a, कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म इज b, and कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म इज c, and here the कोएफिशिएंट मींस नंबर. ओके, now come to the question number 4. Question number 4 is px is equal to 77 minus 4x, sorry, minus x square. Okay, powers of variable are in ascending order, so it is written in the standard form. Here a is 77, b is minus 4, and c
एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 0। कोफिशिएंट है माइनस, यहाँ क्या होता है? 1 होता है, तो कोफिशिएंट इज -1. नाउ डू a into c. We will have 77 into -1, that is -77. So we need difference. Difference should be equal to b is equal to 4. Now write the all factor of 77. 1 से डिवाइड होता है 77 टाइम्स, ऑब्वियसली 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से होता है. 7 से होता है 11 टाइम्स. 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 ऑलरेडी लिखा हुआ. तो ये दो ही पेयर पॉसिबल है, और हमें ऐसा पेयर चाहिए जिसमें डिफरेंस आए 4. तो रिक्वायर्ड पेयर इज 7 into 11. ओके, तो वी विल हैव 77 माइनस 4 की जगह मुझे क्या लिखना है? 11 माइनस 7 into x माइनस एक्स स्क्वायर. 7 माइनस 11 नहीं लिखना है, ध्यान रखिए. 77 फिर माइनस फिर ब्रैकेट में 4 की जगह मैंने लिखा है 11 माइनस 7, x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर. नाउ 77 माइनस 11 x. नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन का ध्यान रखना है. 7x माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ फर्स्ट टू टर्म्स ये एंड देन ये these two terms. इन दोनों में क्या कॉमन है? 11. 77 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो x मिलेगा. यहाँ पे प्लस 7, इसको 7 से डिवाइड किया तो x मिला. सॉरी 7 का कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है x. तो 7x को x से डिवाइड किया तो 7, इसको डिवाइड किया तो x. तो इन दोनों में 7 माइनस x कॉमन आ गया, तो यहां से बच गया 11 प्लस x. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. आप px करके लिखना चाहिए, वैसे अगर नहीं लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5 है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हियर a इज 3, b is equal to 5 and c is equal to 2. a into c करेंगे आप, you will get plus 6. इसलिए हमें सम देखना है एंड सम शुड बी इक्वल टू b, दैट इज. नाउ 6 से फैक्टर करते हैं. 6 is equal to 1 into 6 and then 2 into 3. Only 2 pairs are possible. Okay, and sum चाहिए हमें 5, तो ये पेयर हमारे पास है 2 plus 3 वाला. तो वी विल राइट 3x स्क्वायर प्लस 5 की जगह में लिखा 3 प्लस 2x प्लस 2. 2 प्लस 3 नहीं लिखना है, 3 प्लस 2 ही लिखना है हमें. इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2. 3 इंटू एक्स 3x एंड 2 इंटू एक्स 2x. ये फर्स्ट 2 एंड देन ये 2. इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x. ओके, 3x स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 3x अपॉन 3x. अब यहां प्लस लगाया. अब 2x प्लस 2 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो 2x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2. ये स्टेप नहीं ना जरूरी है, मन में भी कर सकते हो, बट ये मेथड है प्रॉपर. फिजिकल टू 3x, यहां पे हमें क्या मिला? x प्लस 1 प्लस 2 x प्लस 1. दोनों में x प्लस 1 कॉमन है. यहां से क्या मिला हमें? 3x, और यहां से क्या मिला? 2. कैसे पता चलता है? जो कॉमन है उसको हटा दो एक बार. क्या दिख रहा है आपको? 3x प्लस 2 दिख रहा है, सिंपल. ओके, so this is our answer. Now question number 6. Question number 6 is 30m square plus 25mn minus 30n square. The power of m is in descending order and power of n is in ascending order. So it is written in the standard form. So the coefficient of first term is 30. Coefficient of second term is 25. And coefficient of third term is minus 30. But ऐसे भी करें क्वेश्चन तो मुश्किल हो जाएगा. अगर आप तीनों टर्म को देखें, पहली, दूसरी और तीसरी, आपको क्लियर दिखेगा सब टर्म में 5 कॉमन है. तो आपने अगर 5 कॉमन लिया
तो यहां से क्या मिला आपको 6 मिलेगा, यहां से 5 से डिवाइड कर दो 5mn और इसको 5 से डिवाइड कर दो 6m²। तो ये सही है, तो ये वाला गलत रहेगा। सबसे पहले 5 कॉमन लेंगे। ओके, नाउ ये देखना है a is 6, b is 5 एंड c is -6। आप a इंटू c करेंगे तो मिलेगा 6 इंटू -6 इज इक्वल टू -36। क्योंकि ये साइन माइनस है इसलिए हमें चाहिए डिफरेंस, और डिफरेंस शुड बी इक्वल टू b विच इज इक्वल टू 5। नाउ राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 36। 36 1 से होता है 36 टाइम्स, 2 से होगा 18 टाइम्स, 3 से होगा 12 टाइम्स, 4 से होगा 9 टाइम्स, 5 से होगा नहीं 6 से होगा 6 टाइम्स, और डिफरेंस चाहिए 5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पेयर। ओके, नाउ वी विल राइट इज इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है यहां पर। 6m² प्लस 5 की जगह क्या लिखना है हमें 9 - 4mn - 6n²। ओके, इज इक्वल टू 5 6m² प्लस 9mn प्लस इंटू माइनस माइनस 4mn माइनस 6n²। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म में, इन दोनों में 6 और 9 को देखेंगे तो 3 कॉमन आएगा, और ऐसे यहाँ पे 5 कॉमन है m। तो 3m कॉमन है, इसको 3m से डिवाइड करो वी विल गेट 2m, इसको क्या वी विल गेट 3m। ओके, यहां माइनस और इन दोनों में 2 कॉमन है, n कॉमन है। अगेन ध्यान रखना माइनस से कॉमन डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। इसको जब 2n से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 2m, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 3n। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 5, इन दोनों में 2m प्लस 3n कॉमन है, तो उसके बाद बचता है 3m माइनस 2m। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, now we will do the question number 7, that is 15x square plus 43x minus 16. Okay, here a is equal to 15, b is equal to 43 and c is equal to minus 16. a into c करेंगे we will get 15 into minus 16. Okay, 15 6 90, carry over 9 to 40. नेगेटिव साइन है, तो हमें डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 43। 24 के फैक्टर करिए 1 से होगा 240, सबसे इजी मेथड यही है। और भी टेक्निक्स होती हैं, 3 से होगा 80 टाइम्स, 4 से होगा 60 टाइम्स, 5 से होगा 48 टाइम्स, और हमें क्या चाहिए डिफरेंस मिल गया ना यहाँ पर 48 minus 5 43 होता है। So we will write 15x square plus 48 minus 5x minus 16 is equal to 15x square plus 48x minus 5x minus 16. Now in these two terms एक तो x कॉमन है और 15 और 48 में 3 कॉमन है, तो 15x square is divided by 3x plus 48x is divided by 3x. ओके, नाउ इन दो टर्म में एक तो यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन आएगा, और फिर इन दोनों में बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं मतलब 1 कॉमन है। ओके, तो 1 कॉमन है, तो दोनों डिवाइड होंगे -1 से। -16 अपॉन -1 इज इक्वल टू 3x। यहाँ क्या बचेगा हमारा 5x प्लस 16 -1 माइनस प्लस माइनस प्लस 5x प्लस 16, तो दोनों में 5x प्लस 16 कॉमन है, तो यहां से 3x माइनस 1, तो दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, x square plus 5 root 2 x plus
12. Okay. Here a is equal to 1. Coefficient of x square is 1. B is equal to 5 root 2. And C is equal to 12. And A into C is equal to 12. अब अभी जो हमने मेथड यूज किया था फैक्टर करने वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. ऑब्वियसली यहाँ प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हमें सम चाहिए, नो डाउट. सम शुड बी इक्वल टू 5 रूट 2. तो अब आप देखो 5 रूट 2 को कैसे लिख सकते हो आप एज ए सम. ये कैसे लिख सकते हो 4 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 ऐसे लिख सकते हो. ऐसे लिख सकते हो 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2. ऐसे दो तरह से लिख सकते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही. अगर आपको देगा 5 है तो कैसे लिख सकते हो आप 4x प्लस 1x एंड 3x प्लस 2x. ओके. नाउ इनका प्रोडक्ट चेक करो 12 आ रहा है या नहीं आ रहा. इन दोनों को देखो आप पहले. 3 इंटू 2 6 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 3 इंटू 2 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2 होता है. तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 12 हो रहा है. तो दिस इज द रिक्वायर्ड. तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 एक्स प्लस 12. ओके. नाउ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 एक्स प्लस 2 रूट 2 एक्स प्लस 12. नाउ इन दो पेयर में तो बहुत इजी है, एक्स कॉमन दिख रहा है क्लियर. तो एक्स कॉमन लिया तो यहां से क्या मिला हमें एक्स प्लस 3 रूट 2. अब यहां पे क्या कॉमन है, एक तो क्लियर 2 कॉमन है पर यहां पे रूट 2 भी कॉमन हो सकता है. आप 12 के फैक्टर देखो क्या होता है. 12 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3. ओके. तो एक 2 तो कॉमन आएगी हमारा. पर अब अगर आप ध्यान से देखो तो 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 इंटू रूट 2. तो 2 रूट 2 कॉमन आ गया ना दोनों में. तो 2 रूट 2 कॉमन है तो यहां से x बचा. अब आप सोचोगे 12 को 2 रूट 2 से डिवाइड करें क्या बचेगा. 12 को अगर 2 रूट 2 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा. तो 2 रूट 2 छुपा दो आप यहां पर. आप तो क्या दिख रहा है आपको 3 रूट 2. ये तो हट गया तो बचा हमारा क्या 3 रूट 2. तो इन दोनों टर्म में x प्लस 3 रूट 2 कॉमन है. तो यहां से x प्लस 2 रूट 2. तो दिस इज आवर आंसर. ओके. तो जब रूट 2 आता है आपका यहां पर तो आपको ऐसे यहां पे देखना पड़ता है. इसके आप फैक्टर लेके काम नहीं कर सकते हो. ओके. सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 है. क्वेश्चन नंबर 9 सेम पैटर्न में चलेगा. है एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5x माइनस 75. यहां पर जो a है वो 1 है, b आपका माइनस 2 रूट 5 है और c आपका माइनस 75 है. अब a इंटू सी करोगे आप तो यू विल गेट माइनस 75. तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंस है. डिफरेंस शुड बी इक्वल टू b होना चाहिए. तो मुझे ये हमारा है 2 रूट 5. इसको डिफरेंस फॉर्म में लिखना है. देखो ऐसे अगर 2x लिखा है तो कैसे लिख सकते हैं 3x माइनस 1x 4x माइनस 2x 5x माइनस 3 लाइक दैट ऐसे लिख सकते हैं है ना. वही हमें यहाँ पे करना है. तो पहले मैंने कहा 3 रूट 5 माइनस 1 रूट 5. प्रोडक्ट करके देखो 3 1 जा 3 रूट 5 इंटू रूट 5 5 ये होता है हमेशा. तो 15 आएगा प्रोडक्ट. फिर 4 रूट 5 माइनस 2 रूट 5. तो रूट 5 इंटू रूट 5 5 टू 10 10 4 जा 40. देन 5 रूट 5 माइनस 3 रूट 5. तो रूट 5 इंटू रूट 5 5 5 3 जा 15 15 5 जा 75. तो ये चाहिए मुझे. फिर 5 रूट 5 माइनस 3 रूट 5. तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 एक्स माइनस 75 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट 5 एक्स अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस 3 रूट 5 एक्स माइनस 75. अब इन दोनों में क्या कॉमन है. सॉरी यहाँ क्या लिखना रूट 5 लिखना. इन दोनों में x कॉमन है तो एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स कॉमन. यहां से x बचा 5 रूट 5
अब इन दोनों में अगेन 3√5 कॉमन है, तो x माइनस 75 कौन 3√5। यहां करके देख लो कैसे होता है, फर्स्ट चैप्टर सीखा हमने। इसका रेशनल फैक्टर √5 रहेगा, ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आपको मिला 75√5, नीचे मिला 3 इंटू 5, 3 5 15, उससे कैंसिल हो गई है 5 टाइम्स, हमें मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 5√5 प्लस 3√5 इंटू एक्स माइनस 5√5। अब दोनों में हमें x माइनस 5√5 मिल गया, यहां से मिला x प्लस 3√5। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is 3 minus 8 into 2x minus y plus 4 into 2x minus y whole square। ओके, क्वेश्चन को इजीली करने के 2x minus y, ये जो ब्रैकेट रिपीट हो रहा है उसको आप रिप्लेस कर दो, इससे p से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, इसे बोले 2x minus y is replaced by p, तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा 3 minus 8p plus 4p square, और आप क्वेश्चन को सिंपल है। नाउ हियर a is equal to 3, b is equal to -8 and c is equal to 4। a into c करेंगे we will get 12, 12 के फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 1 into 12 and 2 into 6। ये हमारे रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें सम चाहिए था, that should be equal to b which is 8। तो हम लिखेंगे 3 माइनस, बड़ा नंबर पहले लिखना हमेशा, इज इक्वल टू 3 माइनस 6p माइनस इंटू प्लस माइनस 2p प्लस 4p स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1, 6p को 3 से डिवाइड किया तो 2p, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लिया, इन दोनों में 2p कॉमन है, 2p को 2p से डिवाइड किया तो प्लस 1, बिकॉज माइनस को माइनस डिवाइड करते तो प्लस आता है। अब इस प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा और यहाँ पे भी 2p आएगा, तो दोनों में 1 माइनस 2p कॉमन आ गया। ओके, और यहाँ से मिला 3 माइनस 2p। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अब 1 माइनस 2, p की वैल्यू क्या है हमारी 2x माइनस y, वो ब्रैकेट में पुट करी, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस 2, p की वैल्यू कितनी है हमारी 2x माइनस y, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टू जा 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 2y इंटू 3 माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 2y, और ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। नाउ क्वेश्चन 11 इज 40x प्लस 16x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। ओके, पावर्स ऑफ वेरिएबल आर इन असेंडिंग ऑर्डर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सबसे पहले यहाँ देखेंगे सब में x लिखा हुआ है और 40, 16 और 2 में 2 कॉमन है, हेंस 2x सबसे पहले कॉमन लेंगे, इसको 2x से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 20, इसको डिवाइड करेंगे तो 8x, और इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें x स्क्वायर, तो इसको फैक्टराइज करना हमें, तो हियर a इज 20, b इज 8 एंड c इज -1। a इंटू सी करोगे तो मिलेगा 20 इंटू -1 इज इक्वल टू -20, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है इसलिए हमें देखना है डिफरेंस, दैट शुड बी इक्वल टू b विच इज इक्वल टू a। तो 20 के फैक्टर्स लिखो आप, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि 10 और 2 का डिफरेंस 8 होता है। ओके, तो आप देखो इज इक्वल टू 2x स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे 20 प्लस 8 देखोगे 10 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x, तो 20 प्लस 10x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट इन दोनों में क्या कॉमन है 10 कॉमन है, तो आपको मिलेगा 2 प्लस एक्स, क्योंकि 20 को 10 से डिवाइड करो 2, इसको डिवाइड करोगे 10 से तो x, अगेन यहाँ पे माइनस, इन दोनों में x कॉमन है, बिकॉज माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों के साइन हो जाएंगे प्लस,
तो यहाँ मिलेगा +2 और यहाँ मिलेगा +x। तो दिस इंप्लाइज 2x, इन दोनों में 2x + 1 कॉमन है, 2 + x इज कॉमन, यहां से मिला 10 - x। तो our answer will be 2x into 2 + x into 10 - x will be our answer. Okay. So that's all for this session. Thank you very much.